Ajmal since 1951. پل پل رنگ بدلتے موسم، کھیلتی مچلتی ندیوں کا منظر، دور تک پھیلے چائے کے باغات، چاول کی لہلہاتی کھیتیاں، اگرود کے پیڑوں کا جال، ساگ، بانس اور شیشم کے جنگلات، چاروں طرف پھیلی خوبصورتی اور قدرتی وسائل سے مالا مال یہ جگہ کوئی اور نہیں، ریاست آسام ہے۔ ہندوستان کے شمال مشرق میں واقع اس ریاست پر خدا کی خاص مہربانی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ عام طور پر کسان ہیں اور اپنے ماحول کی سی خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسلام کا سورج یہاں شاہ جلال مجرد یمنی کی آمد کے ساتھ 11ویں صدی عیسوی میں طلوع ہو چکا تھا، مگر پچھلے چند برسوں سے اسلامک ویلیوز یہاں سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، بلکہ آسام سے جڑی کئی ریاستوں میں ارتداد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران نیلی میں بھیانک فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑا، جس کے بعد یہاں کے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ آسامی زبان میں اسلامی لٹریچر کی طباعت وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، کیونکہ انہی کتابوں کے ذریعے پہلے تو خود مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کیا جا سکتا تھا، دوسرے غیر مسلم آسامی بھائیوں کے دلوں سے اسلام کے تعلق سے پھیلی غلط فہمیوں کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ نے آسام کے معروف تجارتی خاندان اجمل فیملی کو چنا۔ حاجی اجمل علی اور اجمل برادران نے اسی دوران دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آسام پہنچے مولانا بدر الدین اجمل قاسمی کو ان کاموں کا ذمہ دار بنا دیا۔ چنانچہ مولانا نے مشاہیر علماء اور دانشوروں کے مشوروں اور اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائیوں کے سہارے اکتوبر سن 1982 میں مرکز المعارف کا آغاز کیا۔ اس ادارے نے سب سے پہلے آسامی، بنگالی اور دیگر علاقائی زبانوں میں اسلامی بکس کی پرنٹنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ گئیں۔ لٹریچرز کے اوپر اس لیے کہ آسام میں اس وقت نیلی کا فساد ہوا اور بڑے بڑے فساد ہوئے، تو 83 میں نیلی کا فساد بھی ہوا، تو یہ محسوس کیا گیا کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان میں ایک برج ہے، ایک گیپ ہے بڑا، اور غلط فہمیاں ہیں، اور وہ غلط فہمیاں صرف اس وجہ سے کہ جیسے انڈیا میں اور جگہوں میں کہ اسلام کے بارے میں معلومات لوگوں کی کم ہے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی اور جو کچھ بھی پیٹ پاٹ کے لیے کریں گے، لیکن کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اندر اسلام کا صحیح چہرہ جانا چاہیے۔ آسامی زبان میں دینی کتابیں بالکل نہیں تھی، 2-4 کتابیں جو بازار میں ملتی تھی وہ خاص اعتماد کی کتابیں نہیں تھی، مسئلہ مسائل کے اعتبار سے اس میں بہت سارے غلطیاں تھی، جو ایسے اتھارٹی جو لوگ ہیں کتاب لکھنے کے ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھی۔ تو مرکز المعارف کی بنیاد جن حضرات نے ڈالی ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس وقت آسام میں 2 اعتبار سے، ایک دینی اعتبار سے اور ایک آسامی لٹریچر کے اعتبار سے اس خدمت کی ضرورت ہے۔ کتابوں کی طباعت کے ساتھ ہی مولانا نے آسامی زبان میں اسلامی ماہنامہ گیان سمبھار کا اجرا کیا۔ علاقے کے علماء میں قرآن مجید کے عمدہ طریقہ تلاوت کو عام کرنے کے لیے تجوید کے بہترین اساتذہ مقرر کیے، اور علماء کی آل راؤنڈ اصلاح کے لیے مرکز قائم کیے۔ مساجد و مدارس کی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور بہت قلیل مدت میں ہی درجنوں مساجد قال اللہ قال رسول کی البیلی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ اس کے علاوہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے مسلم بچوں کے لیے صباحی مکاتب بھی شروع کیے۔ اہل آسام نے بھی اس کی ضرورت کو سمجھا، اسی لیے یہ مکاتب اتنی تیزی سے مقبول ہوئے کہ چند ہی برسوں میں آسام کے علاوہ اکثر شمال مشرقی ریاستوں میں ان کا جال بچھ گیا۔ آج مرکز المعارف کے ذریعے 900 سے زیادہ مکاتب مسلم طلبہ و طالبات کی دینی تشنگی مٹانے کے لیے سرگرم ہیں۔ مرکز المعارف کے دینی کام کا جو ادارہ ہے، جو احاطہ ہے، وہ صرف آسام میں نہیں بلکہ شمال مشرق ہند کے منی پور، تریپورہ،
नागालैंड और कुछ बिहार नॉर्थ बंगाल के इलाके में भी ये काम होता है और इस वक्त तकरीबन 900 मकातिब हमारे इन इलाके में चलते हैं। मरकजुल मारिफ के सदर दफ्तर वाक़ हो जाई पर एक वसी अवामी लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। इस लाइब्रेरी में उलूम दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में हज़ारों किताबें मुहैया कराई गईं। इसके अलावा भी दूसरे मौज़ूआत पर मुश्तमिल 16,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ मौजूद हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अपने वालिदैन के फलाही कामों को भी आगे बढ़ाना था, इसीलिए जल्द ही मरकजुल मारिफ के जरिए बेवगान, माजूरीन और परेशान हाल अफराद की माहाना इमदाद का सिलसिला जारी किया। बिलखुसूस उन बेवा औरतों को तरजीह दी गई जो उलमाए किराम की ज़ौजियत में रह चुकी थीं और इज्जत नफ्स की खातिर किसी भी हाल में अपना दामन फैलाने के लिए राजी नहीं थीं। उन उलमा का भी खास ख्याल रखा गया जो जिंदगी भर दीन की खिदमत के बाद आखिरी अय्याम में नाने शबीना के मोहताज हो गए। इनके अलावा गरीब नौजवान बच्चियों की शादी का नज्म भी मरकजुल मारिफ के तहत अंजाम पाता है। हर साल दर्जनों जोड़े इज्तिमाई शादी के पुरशिकोह प्रोग्राम में रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक होते हैं। वो सब लोगों के इमदाद करता है, हर वक्त हर सेकेंड वो सब आदमी के, सब इंसान के हमदर्द है। जल्द ही मरकजुल मारिफ ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत असरी तालीम के मराकिज का आगाज किया। सबसे पहले आसामी मीडियम स्कूलें जारी की, फिर अपना रुख अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की जानिब किया। दरअसल इंग्लिश मीडियम से तालीम दिलाने की जब होड़ लगी तो मुसलमान माँ बाप ये भूल गए कि जिन क्रिश्चियन इदारों में वो अपने नौनिहालों को भेज रहे हैं वहाँ तालीम तो अंग्रेजी मिलेगी, लेकिन साथ ही अंग्रेजी तहजीब भी घरों में घुस जाएगी। चुनांचे ऐसे नाजुक दौर में मरकजुल मारिफ ने सोचा कि सिर्फ वालिदैन को उन क्रिश्चियन इदारों से रोकने की बजाय उन्हें एक बेहतर मुतबादिल फराहम किया जाए। मरकजुल मारिफ ने इन्हीं तालीमी कामों की अंजाम दही के लिए मरकज एकेडमी कायम की। लड़कों और लड़कियों की अलहदा रेसिडेंशियल स्कूलें कायम की गईं और तमाम तर इस्लामी इख्तियार के साथ अंग्रेजी पढ़ाने का एहतमाम किया गया। इन स्कूलों को महज क्लासरूम तक न महदूद करके बच्चों की मजमूई शख्सियत को निखारने का इंतजाम किया गया। कंप्यूटर एजुकेशन को हर जमात के लिए कंपलसरी करार दिया गया। सेहत और स्पोर्ट्स पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसके खातिर खा नताइज भी बरामद हुए। सिर्फ मदारिस के लाइन से काम करेंगे, मकातिब के लाइन से काम करेंगे तो मुसलमान बच्चे जो तालीम में पिछड़े हुए हैं उनका क्या होगा। मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन की बात आई तो फिर आसामी जुबान, उसके अंदर आप अपने स्कूल्स कैसे कायम कर सकते हैं जिसमें हमारे मुसलमान बच्चे नहीं जाते हैं। उसके बाद जब आसामी जुबान में स्कूलों का शुरू हुआ काम तो ये हुआ कभी इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल होना चाहिए। स्कूल तो हमने बना लिए, कॉलेजेस भी हम बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि कम से कम स्कूल में जो फाउंडेशन है उसमें बच्चों को इस्लामी जो तरबियत वो बाकी रहना चाहिए। उन्हें आप आलिम उलमा नहीं बना रहे, लेकिन कम से कम उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए वो इस्लामिक बेसिक फाउंडेशन का कोर्स जरूरी है। इसलिए ये चीज को लिहाज करते हुए हमारे हर स्कूल में उस चीज का ध्यान किया जाता है। सन 1993 के वस्त में आसाम के कई इलाकों में फिरका वाराना तशद्दुद के भयानक वाकयात रूनुमा हुए। बोडो इंतहा पसंदों ने निहत्ते मुसलमानों को अपने जुल्म और जबर का निशाना बनाया। एक मंसूबा बंद अंदाज में मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिश की गई। हजारों मुसलमान अपनी इज्जत व आबरू, घर संसार गंवाकर रेफ्यूजी कैंप्स में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए, लेकिन इन कैंपों में भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया। वहां भी रातों को हमले जारी रहे। इन गरीबों का बस ये कसूर था कि उनका मजहब इस्लाम और जबान बंगाली थी। सरकार भी खामोश तमाशाई बनी रही। ऐसे में मरकजुल मारिफ ने उन कैंपों से यतीम बच्चे बच्चियों को उठाकर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ग्वालपाड़ा मुंतकिल कर दिया, जहां बाद में अहले खैर हजरात के ताउन से लड़के लड़कियों के लिए अलहदा अलहदा यतीम खानों की बुनियाद डाली गई। यहाँ उनके रहने खाने के इंतजामात के अलावा उनकी तालीम और तरबियत का भी शानदार नज्म किया गया। दीनी व असरी दोनों तालीम का एहतमाम किया गया ताकि जो बच्चा जिस मैदान में तरक्की करना चाहे उसमें उसे बेहतरीन मौक़े नसीब हो सकें।
जल्द ही उन बच्चों के न सिर्फ जख्म मुंदमिल हो गए बल्कि वो तालीम के मैदान में भी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ने लगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। बदरुद्दीन अजमल साहब से बहुत मदद किया है, अभी तक कर रहा है। और हमारा छोटो लड़का बच्चा को पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए मदरसा में यतीम मदरसा में ले करके उसको सिखाई कर रहा है। कोई लड़का बच्चा देवबंद पढ़ रहा है, कोई मौलाना हो जाएगा, कोई हाफिज हो रहा है। आज भी उनके लोग कैंपों के अंदर पड़े हुए हैं। तो मरकजुल मारिफ ने फिर जमीयतुल उलमा असम के ताउन से वहाँ से जो है बच्चों को उठाया और पहली मरतबा फिर वो यतीम खाने का एक झोपड़पट्टियों के अंदर यतीम खाने का, क्योंकि उन बच्चों को नहीं तो क्रिश्चियन मिशनरीज उठा ले जा रहे थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज उठाने ले जाने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली उनको तालीम के बहाने ले जाकर उनके दीन को तब्दील कर देना, उनको क्रिश्चियन बना लेना था। तो इस खतरे को वहाँ के मुसलमानों ने, तंजीमों ने महसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों के मशवरे से, वहाँ के जमीयतुल उलमा के अकाबरीन के मशवरे से मरकजुल मारिफ ने फिर इसका बेड़ा उठाया। मुख्तलिफ फिरका वाराना फसादात के अलावा आसाम में कुदरती आफात की वजह से भी हर साल हजारों मासूम यतीम व बेघर होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उसकी खास वजह है। बरसात के दिनों में जब ये मौज में आती है तो बोतरिये गांव का नामो निशान तक मिटा जाती है। उन बेसरो सामान अफराद की बाज आबादकारी आसाम के लिए एक मुस्तकिल मसला है। मरकजुल मारिफ ऐसे अफराद की खिदमत को भी अपना मिशन बनाए हुए है। इन हालात में यतीम होने वाले बच्चों के लिए भी मरकजुल मारिफ ने यतीम खाने कायम कर रखे हैं। मरकज के जरिए कुल 6 यतीम खाने जारी हैं। इन बच्चों को दारुल यतामा में मुंतकिल करने के बाद इनको अपना बच्चा और अपना फैमिली मेंबर समझते हुए इनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं और इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुकम्मल तौर पर इनका इंतजाम कराया जाए। मरकजुल मारिफ के जरिए जारी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कामों का दायरा महज आसाम तक ही महदूद नहीं बल्कि मुल्क भर में जहाँ भी कुदरती आफात से इंसान मजरूह होता है, मरकजुल मारिफ अपना नस्बुल ऐन समझते हुए ऐसी जगहों पर पहुँच जाता है। वो गुजरात का जलजला हो कि मद्रास की सुनामी, उड़ीसा का साइक्लोन हो कि बिहार का सैलाब, हर मुसीबत के मकाम पर मरकजुल मारिफ का दस्ता मौजूद होता है। जब ये गुजरात का मामला हुआ तो उसमें सबसे पहले फ्लाइट में जाने वाले मौलाना असद नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उस ग्रुप में जब उतरने का एयरपोर्ट भी जलजले की वजह से टूटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से फ्लाइट ने लैंड किया। पहला फ्लाइट जो गया था उसके अंदर मरकजुल मारिफ के नुमाइंदगी के हिसाब से हज़रत मौलाना असद नदवी साहब हमारे रहमतुल्लाह अलैह हमारे सरपरस्त है, वो जमीयत के वफद लेके गए और बाकायदा हजरत के साथ मैं गया। रियासत आसाम कुदरती वसाइल से तो मालामाल है मगर सनती व तालीमी तौर पर एक इंतहाई पसमानदा सूबा है और मुसलमान इस फहरिस्त में सबसे पिछड़े हुए हैं। काश्तकारी ही यहाँ का सबसे बड़ा जरिया माश है। चुनांचे महदूद जमीन में ज्यादा और बेहतर पैदावार के लिए मरकजुल मारिफ ने किसानों के लिए हुकूमत से मंजूर शुदा कृषि विकास केंद्र कायम किया है। इस इदारे में 3 रोजा, 7 रोजा और 1 माही प्रोग्राम के तहत किसानों को रहने खाने की जुमला सहूलियात के साथ रखा जाता है और ज़राअत के जदीद तरीकों से रोशनास कराया जाता है। गोट्री फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के तरीके भी सिखाए जाते हैं। इसी के साथ खवातीन को भी रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मरकजुल मारिफ ने टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी वगैरह के सेंटर्स कायम किए हैं। वीविंग के कारखाने भी कायम हैं। हैंडलूम पर दर्जनों खवातीन दिन भर गमोछा और चादरें बुनकर अपने खानदान की माली मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार निभाती नजर आती हैं। मरकजुल मारिफ उन्हें मार्केट में फरोख्त करके उन मेहनत कशों को बेहतरीन मुआवजा अदा करता है। गुर्बत और मालूमात की कमी की वजह से बहुत से आसामी मुस्लिम बच्चे या तो तालीम ही नहीं हासिल कर पाते या फिर तालीम के सिलसिले को तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप फराहम करके मरकजुल मारिफ कई सलाहियतों को ज़ाय होने से बचा लेता है। इसी तरह ऐसे ग्रेजुएट नौजवानों की इस्लाह की खातिर जो इम्तिहान में तो किसी तरह कामयाब हो जाते हैं लेकिन अमली तौर पे कोरे होते हैं के लिए खास प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे SOP यानी सेल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम कहा जाता है।
अलावा अजीम मरकजुल मारिफ शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी कायम किए हुए है। एक वसी कैंपस में ARTDC यानी अजमल रूरल टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बहुस्न खूबी जारी है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बिंग, फिटर, वेल्डर जैसे शोबों की अपडेटेड लेबोरेटरीज का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक जामे कोर्स कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस भी जारी है। देखिए टेक्निकल, एक तो हम अजमल रूरल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर खोले हुए हैं, असम में, ये भी होजाई में है। इसके जरिए बहुत से लोग टेक्निकल एजुकेशन पा रहे हैं और माशाल्लाह रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। इसमें प्लम्बर से लेके वेल्डर से लेके आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, हर जात के काम लोग सीख रहे हैं और माशाल्लाह काम उनके ट्रेनिंग खत्म होने से पहले उनको नौकरियां मिल रही हैं। तालीम के अलावा मरकजुल मारिफ ने सूबे के मुफलिस अवाम के लिए जबरदस्त तिब्बी खिदमात अंजाम दी हैं और इसके लिए मरकजुल मारिफ ने आसाम के दूर दराज इलाकों में भी तिब्बी मराकज कायम किए हैं। इन अस्पतालों में जात पात से उठकर इंसानियत की खिदमत के जज्बे को मलहूज रखकर हर मरीज की खिदमत की जाती है। इनमें ग्वालपाड़ा का अलसलाम हॉस्पिटल, अहक हॉस्पिटल और बदरपुर हॉस्पिटल काबिल जिक्र हैं। इन अस्पतालों में ऑपरेशन समेत दीगर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। इनके अलावा डायरेक्ट पेशेंट्स हेल्प के नाम से एक स्कीम जारी है जिसके तहत शदीद जरूरत के वक्त मरीजों की फौरी इमदाद का इंतजाम भी किया जाता है। तो हर इंसान का, इसमें कोई मजहब का मामला नहीं है। मजहब रिलीजन से ऊपर उठ के हॉस्पिटल्स बनाना शुरू किए और ये सब हॉस्पिटल जो है वो 80-85% तक कहीं कहीं चैरिटी है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। उसमें हर किस्म के, हर मजहब के, हर धर्म के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है कि हम लोग हॉस्पिटल्स के लाइन से या मेडिकल खिदमत के लाइन से पूरे आसाम में एक जाल बिछाए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और उसके तकरीबन 6 हॉस्पिटल भी हमारी हो चुकी है। हेल्थ केयर के नाम से जारी शोबे में अस्पतालों और मरीजों की इमदाद के अलावा प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम भी जारी है। दरअसल आसाम में जहां एक तरफ बारिश की ज्यादती की वजह से जल थल रहता है, वहीं कुछ पहाड़ी इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के मोहताज हो जाते हैं और इस पर तुर्रा ये कि आसाम के पानी में कुदरती तौर पर आयरन की मकदार काफी ज्यादा है, जिसका बिना प्यूरिफिकेशन के इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत मुजिर है। लिहाजा मरकजुल मारिफ ने हजारों की तादाद में रिंग वेल और ट्यूब वेल शुरू किए हैं। वाज़ेह रहे कि ये काम उन जगहों पर भी हुआ है जहां सरकार या तो पहुंच ही नहीं सकी है या फिर सरकार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। तो खाली ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर काम नहीं करता, मरकजुल मारिफ बहुत से जगहों में